heartiest welcome, everybody. And today we have our amazing group of doctors today, proud doctors of the country, Dr. Jyoti, Dr. Amit, Dr. Shanazar, Dr. Shashank, and Dr. Krishna. And all of them were a group of students who were together throughout. They were staying in the same sessions in Arise Delhi, and they have passed in first attempt with such amazing scores. And warm welcome to each one of you. I would want each one of you to introduce yourself and how is it, how is the feeling of clearing this exam? Dr. Jyoti. Thank you so much, sir, for your warm introduction. I am Dr. Jyoti. I basically belong from Rajasthan, and I started my MBBS journey from Kagma, Kyrgyzstan, where we met in the very first year when you came to Kagma for teaching us anatomy. Like I started taking my MCI classes from Arise since I was in fourth year. फिर सर धीरे धीरे वो चीज़ बहुत कंटिन्यू हुई। फोर्थ ईयर में हमने बहुत कैजुअली क्लासेस ली, हम लोगों सबने साथ में क्लासेस ली। फिर फिफ्थ ईयर में जो भी क्लासेस हुई है राइस की, वो हमने सब अटेंड करी। फिर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया जब आप लोग कॉलेज आते थे, ऐसे बोलते थे कि हम इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत क्लूलेस थे। देन वी ऑल डिसाइडेड कि हम लोग साथ में अराइज दिल्ली आए। फिर उसके बाद से तो हमारी जर्नी कभी हमें सोचनी ही नहीं पड़ी। जो उसका शेड्यूल आया राइस का, वो हमने फॉलो किया। फिर वैसे चलते 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 कब पास हो गए पता ही नहीं चला। Nice, nice. And I knew you guys were working sincerely right from their college days only. पता तो था पास कर लोगे, I think. What is the difference that you're feeling before passing the exam and after passing this exam? It feels so good, sir. It feels like we are in system now. Nice, nice, nice. You're Dr. Amit. Amit, please introduce yourself and a few words about the difference that you're feeling after clearing this exam. Hello, sir. First of all, I would like to thank Rise whole team for teaching us and giving support us in each and every time. Like, sir, in fourth when I am in fourth year, there is Russia and Ukraine war. उसके बाद तो सर 7-8 महीने इंडिया में निकाले तो पता चल गया था अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं करें तो कुछ नहीं है आगे। तो जैसे फिफ्थ ईयर में गए तो सर फिर जलालाबाद में, लेकिन जब जैसे फिफ्थ ईयर में वापस सिक्स्थ ईयर से आए पता चला सब कुछ साफ हो चुका था। देन ओनली सिर्फ सर जो इंडिया से टीचर आते थे वही क्लासेस की हमने सिक्स्थ ईयर में, और देन आई ज्वाइन अराइज दिल्ली सर। फिर जो भी स्केड्यूल आया वही। Which place in the country? कहाँ से हो आप इंडिया में? Sir, basically from Haryana, sir, but living in Delhi from last 17 to 18 years, sir. Okay, okay. And please introduce yourself, Dr. Shanazar. कैसा लग रहा है आपको अभी and which place in India? Myself, Dr. Mohammed Shanazar, sir. I'm from West. And which college you are from? I'm from Kashmir, sir. Kagma. Okay, fine. And how is the feeling? क्या difference लग रहा है पास होने के बाद? सर ऐसा लगता है अब तो ग्रेजुएशन हो गई है। So myself, Dr. Krishnakant Gupta. I am sir from Kanpur, Uttar Pradesh, and sir I completed my graduation from Kyrgyz State Medical Academy. And sir, after that we all joined Arise, and sir very thankful to you and the whole team for such contributions, sir. Because without your support, sir, we couldn't do it. And sir, how is the feeling? क्या difference दिख रहा है अपनी personality में, घर पे कुछ ऐसा? So feeling, before... sir, parents are happy, sir. Everyone is happy around me, sir. Everybody is happy around. Nice. They have their trust that I can do more better in my future. And nice, nice. And first, and all of these are first attempt, right? All of you have yes, just graduated from the university and cracked. Yes, nice. Dr. Shashank, please introduce yourself and कहाँ से हैं आप और कैसा लग रहा है अभी एग्जाम के बाद? First of all, sir, thank you for from all of us, sir. And sir, I'm from Haryana, Narnaul. And sir, we all are friends. सर जैसे कि आपने भी देखा होगा सर, अब बिल्कुल साथ ही बैठते थे हम। और सर जो अमित है सर, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे इसमें तो, क्योंकि सर यही हमारे लिए सीट रोकता था वहां पर भी सर। वो गड़बड़ अमित इतना स्टाफ सताने के बावजूद इतने सारे लोग के लिए सीट रखता था। सर जैसे तैसे करके आपकी फैकल्टी से लड़ झगड़ के बड़ी सीट रोकी है सर। हमेशा सर, हमेशा। तो सर एक इसका बहुत बड़ा क्रेडिट तो अमित के पास भी सर, हमारी जर्नी का और सर हमारी सक्सेस का भी और हमारी जर्नी का भी। आप लोग अमित को जानते थे या फिर यहाँ पे मिले आप लोग? सर मैं और अमित कोचिंग टाइम से दोस्त थे सर, 2017 से। अच्छा। तो सर उसके बाद फिर हम सारे फ्रेंड्स बन गए थे। नाइस, नाइस।
तो ऐसे ही सर फिर बस यही सर, इतना कुछ है नहीं खास हमारा, यही सर नॉर्मल सी स्टोरी है, ऐसी कोई बड़ी झगड़ी ऐसी है नहीं सर, स्ट्रगल हमारा। कैसा डिफरेंस दिख रहा है घर पे? कैसा है? कोई कोई चेंज आया परसेप्शन में, अपने अपने खुद के सर कॉन्फिडेंस में? यू आर फीलिंग एनी डिफरेंस? सर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा बूस्ट मिला है सबसे पहले तो, क्योंकि सर पहले तो ऐसे लगता था कि क्या होगा, होगा या नहीं होगा, सबकी अलग अलग स्टोरियां थी, कुछ सीनियर्स की थी सर कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो थोड़ा वो भी था कि पहली बार में होगा या नहीं होगा, सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो सर जीटी में ठीक नंबर आते थे हम सबके लगभग बराबर ही। नाइस। तो उसके बाद सर एग्जाम में भी दिया, तब भी श्योर नहीं था सर कितने आएंगे, अनप्रेडिक्टेबल था बहुत बहुत एग्जाम। फिर सर उसके बाद जब पास हो गए तब लगा हाँ सही कर लिया है कुछ। चल, नाइस नाइस। एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट सच गुड स्कोर्स, यू ऑल वर गुड, सबने अच्छे स्कोर से पास किया है, सो रियली रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। एंड Thank you डॉक्टर so much. ज्योति, हाउ सपोर्टिव वाज दिस ग्रुप फॉर योर प्रिपरेशन? हमारा ग्रुप तो था, तो सर हम लोग कभी फ्रंट बेंचर्स नहीं थे, हम कगमा में भी लास्ट पे बैठते थे, कोचिंग में भी हम कहीं बीच में भीड़ में सीट रोकते थे, 6-6 8-8 सीट हम रोकते थे आके। और बाकी सर हमने सब क्लासेस बहुत एंजॉय करी, सब क्लासेस अटेंड करी हमने। हम कोई अगर क्लास मिस भी करना चाहता है तो एक दूसरे को ऐसे इनकरेज करते थे कि नहीं क्लास तो लेंगे। ऐसे ही चलते चलते सर हम लोग क्लास में कभी ओवर टाइम नहीं किया, कभी खुद को ओवरबर्डन नहीं किया, किसी ब्रेक में नहीं पढ़ा, हर ब्रेक में चाय नाश्ता करते थे। इवेंचुअली जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ा भी बिना स्ट्रेस लिए। इनफैक्ट एग्जाम के बाद में भी जब हम मिले सब, तो हम लोग 3-4 दिन तक साथ थे सब। हम एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करते थे तो 5 लोग बोलते थे कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोगों ने सबने डिसाइड किया था कि हम कोई रिकॉल नहीं देखेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, सीधे रिजल्ट देखेंगे। नाइस। बट आई थिंक वो मोमेंटम मेंटेन करने के लिए, नॉट टू गेट इनटू एंजाइटी एंड जो अननेसेसरी हाँ सर, प्रेशर बर्डन, ये ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम जो हो जाता है ना, एक दूसरे के साथ चिल्ड आउट है, रिलैक्स्ड है, सीइंग एवरीबॉडी स्टडी। आई थिंक दैट सर दैट इतने चिल्ड अप तक भी नहीं देखा है रिकॉल तो, अब पर फायदा भी नहीं देखने का। नाइस नाइस। एंड अमित, सबसे सबसे पहले उठ के कैसे आते थे आप? ये लोग सब अच्छा मस्ती सोते थे, आराम से आते थे, अमित आप? का तो दूसरा अमित घर सर ही बहुत राइस था। कंसिस्टेंट था सर, बहुत सर कंसिस्टेंट अमित का था दूसरा थ्रू घर आउट। था राइस की लाइब्रेरी। शायद ही कोई दिन होगा इन 6 महीनों में कि अमित ने राइस की लाइब्रेरी में रात की 1 नहीं बजाए। वो रोज सुबह 6 से 1 ही लिटरली रहता था। जी सर, मेरे थ्रू को आउट जर्नी। मेरे को ही देख के सर मोटिवेशन मिला जब स्टार्टिंग में आया था, जब तो सर मैंने पहला जीटी दिया जब मेरे 143 मार्क्स थे, और इनके मार्क्स उस टाइम 210 200 अबव आते थे, तो इनको देख के थोड़ा बूस्ट मिलता था सर। अच्छा, नाइस सर स्पेशली शाहनवाज सर को सर। ये सर सर मैंने आपको मेंशन किया था ना, एक हमारा फ्रेंड है जिसको नोट्स ऐसे याद है कि नींद में से उठा के पूछ सकते हो आप, शाहनजर। नाइस अभी भी नाइस। सर आप पेज वो नंबर के सर, साथ पूछ सकते हो उसको कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है। सर आई थिंक बहुत कंसिस्टेंट थे सर, ये दोनों तो बहुत कंसिस्टेंट थे, सर एक बार शानजर और कुछ पूछ अमित लो सर। सर, रेडियोलॉजी से कुछ पूछ ही लो सर इसी बार। सर इस बार भी काफी हेल्प मिली है, वो पीडियाट्रिक से जो इंटरेक्ट हो गया है सर, क्वेश्चन रेडियोलॉजी काफी थे, तो बहुत सपोर्टिव रहा था सर रेडियोलॉजी तो। नाइस। एंड अमित, आप यूक्रेन वॉर में थे, फिर बाद में यू शिफ्टेड टू अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, इट मस्ट हैव बीन, आई मीन, काफी सारा प्रेस्टाइजिंग सिचुएशन होगा, एंड देन Yes, sir. स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। हाउ इम्पोर्टेंट इज यूनिवर्सिटी क्लासेस? जो आपके यूनिवर्सिटी में भी फाइनल ईयर में क्लासेस चलते थे, वो उसका कितना आपको हेल्प मिला ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर मेनली मैंने यूनिवर्सिटी में सारी क्लासेस करी थी सर, एक दो सब्जेक्ट ही नहीं की थी, लेकिन आखिरी में जैसे मैंने राइज में कोचिंग ली तो मेरे को उन्हीं सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी सर। जो आप नहीं करके आए थे। यस सर। तो मैंने तो यही है कि वहाँ जो क्लास हो रही हो तो सारी करो, वहाँ की क्लास करने के बाद क्वेश्चन लगा लो मेन तो, लेकिन यहाँ इंडिया आने के बाद कोचिंग थोड़ी जरूरी हो जाती है सर, ताकि वो मोमेंटम बना रहे। एंड फर्स्ट जीटी यू टोल्ड यू गॉट 143, एंड यस सर। हाउ, ये सारे लोग ऑलरेडी स्कोर कर रहे थे, हाउ डिड यू मैनेज? आई मीन, व्हाट वाज योर वे ऑफ अप्रोचिंग दिस, के जो भी बच्चे होते हैं ना, तो ऑलरेडी कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, जीटी वाले अच्छा स्कोर भी करते होते हैं। सर मेनली तो सर मैंने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने यही था जैसे क्लास होती थी, क्लास के बाद सेम सेम के सेम दिन नोट्स पढ़ने, और जिस दिन क्लास होती है सर मुश्किल से 20 से 30 एमसीक्यू लग जाते थे, तो वही बहुत हो जाता था सर। 4 दिन की क्लास है तो अगले दिन मेरे का यही था कि पूरे दिन में वो नोट्स पढ़ने, पेज पढ़ने में खींच के, और फिर एक दिन एमसीक्यू लगाने, यही होता है सर मेनली तो मेरा। आई और थिंक धीरे आप जो धीरे लाइब्रेरी स्कोर। में 1-1 बजे तक बैठते थे, आई थिंक यू कंपनसेटेड विद दैट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के यू यस मैनेज सर। दैट दैट बैलेंस आउट कर लिए। यस एंड सर। शाहनजर, ऐसा कैसा है, नींद में से उठ के भी याद रखे, ऐसा परेशान क्यों करे बाकी के ग्रुप मेट्स को?
सर ऐसा नहीं होता, किसी की भी याद नहीं होगा सर नींद में तो। पर हाँ सर, नोट्स रिवाइज हो सकते हैं राइज के, तो मैंने किए सर। एंड शाहनजर, आप कब से पढ़ना शुरू करें एज लाइक प्रॉपरली फॉर एफएमजी प्रिपरेशन? सर मैंने कॉलेज से राइज की जितने भी फैकल्टी जाती थी, फोर्थ ईयर से मैंने क्लासेस लिए सर। फोर्थ ईयर से करना शुरू करे फोर्थ तो यूनिवर्सिटी की तैयारी और अराइज दिल्ली की तैयारी में क्या फर्क रखे आप? टीचर्स आ रहे थे ऑलरेडी, हम लोग वहाँ पे और सब क्लासेस भी कर रहे थे, तो ऐसा क्या अप्रोच डिफरेंस करे आप? सर वहाँ पे वो वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता कि बच्चे एकदम से कर पाए। दिल्ली में है सर, हम्म। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो तुम आराम से कर लोगे सर। हम्म। मुझे बहुत चीजें नहीं समझ आती तो मैं इनसे पूछता था, खासकर हम्म। शशांक और कृष्ण से सर। हम्म। क्योंकि अमित और ज्योति तो लाइब्रेरी में बिजी होते थे। Nice, 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 nice. And Dr. Shashank, uh, Yes. you scored so well in the first attempt, and पूरी जर्नी में as a group आपको क्या support system मिला with these people? सर जैसे हम 5 हो गए 6 हो गए, कभी सर आ जाते थे फ्लैट पे ही साथ बैठ जाते थे सर। सर एक फ्रेंड और हमारा है हर्ष, वो ज्वाइन नहीं कर पाया सर। तो हम्म। सर ऐसे हम सब रहते थे साथ में, तो ऐसे कोई रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेते थे ऐसे मजाक से ही। फिर हम्म। सर वो बताता तो सर उसको ऐसे ही टाल देते थे बात को, अगर नहीं बता पाया सर उसकी बेइज्जती करते थे फिर कि निकल जा फ्लैट से। तो सर ऐसे हंसी मजाक में सर कुछ चीजें याद हो गई, कुछ Nice, चीजें सर nice. नॉर्मल एफर्ट दे के हो गया बस। फिर उसके बाद इतना कुछ लगा नहीं मुझे कि हार्ड है सर। हम्म। नॉर्मल सर, रोज का काम रोज करते थे बस, और कुछ ज्यादा नहीं। कब से पढ़ना शुरू करे शशांक? आप भी विच ईयर? सब लोग फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर रहे थे आप लोग? सर हाँ, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी सर। जैसे हम से कि हम रेगुलर थे कि सर, कभी बीच बीच में रेगुलर होते भी नहीं थे। हम्म। और सर प्रॉपर जो बिल्कुल जिसे कहते हैं तैयारी शुरू करी सर, वो अराइज आके शुरू करी फिर हमने। एंड डॉक्टर कृष्णा, आपका कैसा था जर्नी, वेरी अर्ली पार्ट जब स्टार्ट करने वाला? सर थर्ड ईयर से सर, कोविड में तो सर पढ़ाई नहीं हुई लिटरली किसी की भी। फिर हम जब लोग हम्म। सर कोविड से बाद में गए कॉलेज, तो थोड़ा बहुत सर शुरू किया क्लासेस के लिए। पहले तो वहाँ भी कुछ ना कुछ चीजें पढ़नी पड़ती थी क्लासेस के लिए। पर सर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में क्लासेस शुरू हो गई हमारी अराइज की, जो भी थे फैकल्टीज आना शुरू हो गए। सर वो क्लासेस करी हम लोगों ने। फिर हम्म। सर जब अराइज यहाँ पर आए हम लोग, तो यहाँ सर सिंसियर थे, हमारा माइंड मेकअप था कि जाके पढ़ना है अच्छे से, अब जो भी है कर लिया यहाँ पर। फिर सर अराइज में ही शुरू हुई जर्नी हमारी। तो सर पहले हमारा यही था कि स्टार्टिंग में कि हर टेस्ट होगा, जो हम हर टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। सर वही किया हम लोगों ने, हर टेस्ट में ठीक स्कोर करते थे सर हम, क्योंकि बैचेस में जो भी रिजल्ट आता है ठीक हम्म। स्कोर करते थे सर। और बस सर वही करते रहे हम लोग लास्ट तक। फिर जीडीज होना शुरू हुए, फिर आपका ये टेस्ट टीएनडी शुरू हुई सर। और ऐसे ही करते करते सर एग्जाम हो गया, पता भी नहीं चला हम लोग को। नाइस, जी नाइस, स्मूथ। आई थिंक ये अर्ली स्टार्ट वेरी स्मूथ सर, इट बच्चे वाज वेरी फोर्थ स्मूथ ईयर से, सर। फोर्थ जी ईयर से सर, जो स्टार्ट करने के बाद जो मोमेंटम मिल जाता है, नो, इट डजंट मेक यू वरी और पैनिक। पढ़ लेना एक बार और सर रिवाइज करने में बहुत डिफरेंस है। रिवीजन जो हम लोग ने मतलब स्टार्ट किया करना, बार बार चीजों को रिवाइज करना, वो सर रिवाइज नहीं किया। पहले पढ़ लेते थे बट फिर एक टाइम के बाद आप भूल जाते, चीजें रिकॉल नहीं कर पाते हो। बट सर रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। और जिसमें शशांक और ये सब ज्योति अमित, ये तो बहुत फास्ट है, मतलब इनको ऐसे फ्लिप करके पढ़ना बड़ी जल्दी की हो गया हो गया हो गया, ये तो आता है। सर रिवीजन का सबसे बड़ा रोल है, मतलब आप पढ़ लिए तो एक बार, बट रिवाइज जरूरी है करना, जितनी बार कर सको आप। नाइस। ज्योति, रफली हाउ यू, आई सॉ यू इन कगमा, वहां पे ही बैठ के आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे थे। आई रिमेम्बर यू इन द क्लासरूम एंड इन योर फाइनल ईयर ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड ऑल। जी एंड सर। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू एक्चुअली रिवाइज बिफोर दिस एग्जाम? सर कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा रिवीजन हुआ, कुछ में कम हुआ, बट ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट का 2 से 3 बार रिवीजन हुआ था इन 6 महीनों में। हर पन्ने को याद करके पढ़ते थे कि इसमें जो लिखा है वो याद होगा। बाकी हम 3 लोग ऐसे, जो प्रियांश सर नहीं कहते फ्लिप द पेजेस, तो हमने बहुत फ्लिप करे, जिसमें अमित ने पैथोलॉजी 12-15 बार फ्लिप करी कि मैं तो पैथोलॉजी में कुछ छोड़ूंगा ही नहीं जो मुझे नहीं आता है। सर लास्ट में आते आते ऐसा स्टेज आ गया था कि आखिरी के टाइम पे कि इतना टेंडेंसी इम्प्रूव हो गई थी फ्लिप करने की, तो एक एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट्स के मेन नोट्स फ्लिप हो जाते थे, 3-3 4-4 सब्जेक्ट्स की। जो आप कहते थे कि विजुअल मेमोरी एक रोल प्ले करेगी, वो हुआ। Nice, nice. I think that's a good advice. As everybody is, telling that multiple times, flipping your main notes, and the important thing is main notes. What Jyoti is stressing on, be loyal to your main notes. I think that Dr. Amit, how was your preparation journey? आपको कोई ऐसी चीजें दिक्कत दी during your learning process, or any special mentions of any subjects that you really enjoyed during the classes? कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल मजा मजा आया क्लास सुन के अराइज दिल्ली में? सर मेनली तो सर मेरे को पैथोलॉजी थोड़ी प्रॉब्लम कर रखी थी, क्योंकि मैं वहाँ से जलालाबाद से पढ़ के नहीं आया था पैथोलॉजी।
पैथोलॉजी का तो सर मैं यही करता था, जैसे सुबह उठते हैं सबसे पहले मैं पैथोलॉजी फ्लिप करता 30 मिनट 30 35 मिनट जितनी आती थी मेरे से। बाकी सर रेडियोलॉजी ने तो मेरी बहुत हेल्प की, सच बताऊं तो सर मेनली सर्जरी में ज्यादातर सर्जरी क्वेश्चन में रेडियोलॉजी से हो जाते थे मेरे। Nice. और सर मेडिसिन मेडिसिन सर बहुत इंजॉय करिए सर। Nice. शानद, about the subjects, 19 subjects में कौन से आपके weak subjects थे and how did you work on them? कोई नहीं था सर। कोई नहीं। नहीं सर, सर, आपको ओपा ऐसे पूछना चाहिए कौन सा इसका ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसमें कुछ भी पूछ सकते हो आप। अरे रे, सर मजाक नहीं कर रहे सर, सच बात है ये। नाइस। तो जितना हम 6 महीने नहीं लगे ना यहाँ पे, वो इतना पिछले 3 साल से पढ़ रहा है। वो कगमा की लाइब्रेरी में भी रात के 9 बजे तक बैठता था। आई एम रियली हैप्पी इतनी सर, हार्ड वर्क मैंने करके। सिर्फ अराइज के नोट्स ही पढ़े हैं पहले भी, और यहाँ पे आने के बाद भी तो सेम नोट्स तब से पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ना सर। नाइस नाइस नाइस। अब मैं शुरू से भी स्टार्टिंग से ही अराइज के नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो वो हो जाता है सर। Nice. I think multiple times sticking to the same source. And Shashank, this is a common thing. बच्चे इतना सारा कंटेंट आज अवेलेबल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट, राइट? आप इतना कॉलेज डेज में भी, और कंटेंट अच्छा है सब जगह पे ना, इतना डिटेल में भी होता है, तो टू मेक द डिसीजन इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। बच्चों का वो शिफ्ट आने के लिए ना एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है कि इफ यू आर शिफ्टिंग टू अराइज कंप्लीटली डूइंग इतने 4 साल 5 साल हम इतना सब कुछ पढ़ के थे, तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सर टू बी ऑनेस्ट ऐसे सर 2 से 3 सब्जेक्ट ही होंगे जो मैंने सर अच्छे से किए थे, क्योंकि सर पता था कि जितना क्रिस्प करेंगे, जितना शॉर्ट रखेंगे, उतना ही फायदा होगा। नहीं फिर सर मजल अप हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सर वो जो हमने पीवाईक्यू किए सर अराइज के नोट से, उसको रिवीजन करके, तो सर वो बन रहे थे। सर और क्या चाहिए था बस। एंड कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो रियली यू एंजॉयड लर्निंग इन अराइज, जिसमें बहुत मजा आया? सर वैसे सर सारे सब्जेक्ट ही ठीक थे, बट सर रेडियोलॉजी जैसे आप पढ़ा रहे थे सर, रेडियोलॉजी में काफी इंटरेस्ट लगा मुझे। सर रेडियोलॉजी टेस्ट में भी काफी अच्छे नंबर आए थे मेरे। और सर बता दो सर को। और सर पीएसएम सर थोड़ी मेरे को शुरू से अच्छी नहीं लगती थी। तो सर वो लास्ट टाइम में मैंने उसे रोज पढ़ना शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा रोज रोज। तो सर उसने काफी हेल्प की लास्ट में मेरे को एग्जाम में भी। उससे काफी क्वेश्चन आए भी थे और काफी ठीक कर भी दिए थे मैंने। Nice. I think PSM is a very volatile and also vast subject. जी सर। And Dr. Krishna, how did you find the exam? Exam कैसा था? Like, did you find it on the same lines that you were writing GTs? जो GTs हम करते थे, similar lines में था, या फिर एग्जाम में ऐसा क्या? नहीं सर, लैंग्वेज सर बहुत डिफरेंट होती है। हम जो जीडीज देते हैं सर, उसकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है, और वो सर क्वेश्चन देखे होते हैं हमारे, वो टॉपिक्स और वो चीजें देखी होती है। बट सर एग्जाम में, मेरे एग्जाम में सर पेपर बहुत अलग था। तो हम लोग ने जब पहला पहला वो दे दिया, पहला राउंड दे दिया, तो हम लोग बाहर मिले, तो ये था कि ये तो भाई गया हमारे हाथ से इस बार वाला पेपर, तो अब कुछ नहीं होगा। फिर ये था कि चलो रिवाइज करते हैं, जो भी है 2-3 चीजें जो भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाए रिवाइज किए। फिर सर सेकंड उसमें आए तो शिफ्ट में बहुत इजी था वो, तो हमको लगा अब टफ आएगा, अब टफ आएगा। बट सर लास्ट तक मतलब 150 क्वेश्चन तक सर वो पूरा पेपर इजी था। मतलब कुछ क्वेश्चन ही बीच में टफ होंगे, अदरवाइज सारा इजी था। तो सर बाद में फिर स्कोर ऐसा लगा पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, कर तो आए हैं। बट ये था कि सर हमेशा जितने भी जीटीज दिए थे मार्क्स हमारे सही आते थे, हम सबके थे सर 190 180 ऐसे आते थे। मतलब मिनिमम मार्क्स भी हमारे 180 होंगे सर अब। बट सर हो गया सबका सेम, उतने ऑलमोस्ट सबके बराबरी मार्क्स आए सर। Nice, nice. And Jyoti, something about your exam result day. कहाँ पे थे आप and how was your experience? तो मैं घर पे थी, कोई था नहीं घर पे। सच मेरे अंकल आंट थे घर पे। तो मैंने रिजल्ट खोला, तो जैसे वो खोलते ना, तो ऊपर ऐसे बार के ऊपर मेरे ऊपर और नीचे जो स्टूडेंट का रोल नंबर था उस पे फेल था। तो मैंने पहला फेल देखा, फिर मुझे ऐसा धक्का सा लगा, फिर मैंने उसको टैप किया तो मैं पास थी। फिर मैंने फिर से खोल के देखा, फिर मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, वो अभी दिल्ली में, कि मैं एक बार मेरा रिजल्ट देखना। फिर उसने रिजल्ट देखा, फिर मैंने घर पे बताया कि नहीं नहीं पास हो गई मैं। तो फिर उसके बाद में ये था कि सबसे पूछ लेते हैं कहीं किसी फ्रेंड का तो नहीं रहा। फिर सबको पूछा, जिस जो मैसेज नहीं भी देख रहा था उसको इंडिविजुअली कॉल किया कि देखो रिजल्ट तो देखो एक बार क्या रहा। फिर जब पता चला सभी पास हो गए, फिर ऐसा लगा कि अब तो हो गया एफएमजी। मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि यू पास इन ग्रुप्स एंड यू फेल इन ग्रुप्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलाइन विद द राइट ग्रुप, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल. आई थिंक अमेजिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स who worked together and got it done in their first attempt and together, I mean throughout the process, and सबके scores काफी अच्छे हैं, and that makes them
स्पेशल ऑल्सो एंड द पूरा ग्रुप एक हमेशा क्लास में एक जगह पे बैठ के मस्ती भी इतनी चलती थी ये लोग की. एंड आई रिमेम्बर कॉन्स्टेंटली ये लोग आई थिंक ज्योति ऑल्सो वाज इसमें से सबसे ज्यादा नोटोरियस कौन थे, ज्यादा कमेंट्स कौन करते थे क्लास में? शशांक सर, शशांक सर शशांक बहुत सरकास्टिक कमेंट करता है सर हर क्लास में हर जगह. सर जैसे एमसीक्यूज को लेके ना एक अजीब सा कंपटीशन था कि ऐसा ट्राई करते थे हम लोग कि कोई भी रैंडम कहीं से भी हमको कोई 5 एमसीक्यू दे तो हम कोशिश करेंगे उसमें से 3 सही करें, चाहे वो हमने कभी नहीं देखे हो, कहीं से भी आ गए हो, कुछ भी उठा दिया हो. Nice. तो वो चीज एक अच्छी हैबिट बिल्ड हुई. फिर एक दूसरे की बहुत लेग पुलिंग करते थे कि तुझे ये भी नहीं आता है तो क्या करेगा तू, मत दे पेपर, घर छोड़ दे. Nice, सर nice. अगर जेटी में जिसके नंबर कम आए उससे पार्टी भी लेते थे, और तो बंदे पर डबल प्रेशर. हाँ सर, ऐसे Nice. रखते थे Practice कि को 500 celebrate रुपए की किया है. पार्टी, 1000 रुपए की पार्टी तू देगा जो इसके सबसे कम नंबर आए. सही है. तो वो पार्टी से बचने के लिए पढ़ना पड़ता है फिर. पढ़ना पड़ता है सर. तभी पास हो गए सर, लग रहा है. सर हर Nice, सब्जेक्ट nice. सेलिब्रेट किया है हमने. जो ऐसा होता है ना कि सब्जेक्ट हो गया, फिर एक दिन का ब्रेक है, फिर सब्जेक्ट टेस्ट है, तो जब उसका रिजल्ट आता था ना तो वही ढूंढते थे कि नंबर किसके कम आए हैं, फिर वहां बैठ के कुछ ऑर्डर करते थे. उस दिन पढ़ते ही नहीं थे. इतना एंजॉय करते थे कि पास हो गए. Nice, nice. अमित, कमिंग बैक टू दी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस, कैसा बैलेंस करते थे, कितना थियरी और कितना एमसीक्यू करना चाहिए? क्लासेस खत्म होने के बाद तो सर यही था कि सुबह आते थे लाइब्रेरी, शाम तक 7-8 बजे तक जितनी थ्योरी हो पाती थी कर लेते थे, उसके बाद एमसीक्यू लगाने स्टार्ट करते थे सर. मेनली तो यही था, 3 घंटे तो लग ही जाते थे एमसीक्यू लगाने में सर. मतलब 50 एमसीक्यू हो ही पाते, ज्यादा नहीं कर पाते सर, 50-60 मैक्सिमम हो पाते दिन के. एंड लेकिन ये था सर कि हमने किसी ने 20th नोटबुक कुछ नहीं बनाया, जो कुछ था सर उन्हीं नोट्स में ऐड किया सबने. yes, सबने yes. मेन नोट्स पढ़े हैं, कोई भी ये नहीं है कि भाई यहाँ से कर लूँ वहां से कर लूँ, सिर्फ अराई से स्टिक रहे हैं सारे. Good, good, good. And Shanazer, few things on the mistakes to avoid. क्या लगता है कि भी आप इतने वेरी अर्ली स्टार्ट थर्ड ईयर से बच्चों को परेशान करके रखते हो और लाइब्रेरी में जाके के एसएमए के राइट, तो ऐसा क्या मिस्टेक्स आपने देखा होगा कि बच्चों का towards the end? I think a lot of customer students have passed this time, but many people are also still the pass percentage इतना अच्छा रिजल्ट तो आया, and we are very proud of whatever efforts the students are keeping and clearing, but still 70% of the FMG crowd is still not cleared. तो any suggestions और जो आप ऑब्जर्व करें बच्चों के गलतियां जो होते हैं? सर जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था, सीनियर थे सर, वो टीचर चेंज कर लेते थे सर. बच्चे मेन नोट से पढ़ रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लेते थे. जैसे कुछ बच्चे अराइज के भी थे सर, मैं लाइब्रेरी में पूछता भी था ऐसा क्यों कर रहे, क्या अल्लाह वो समझ नहीं आया, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता. वो शॉर्ट नोट्स भी थे सर, लेकिन वो टीचर बहुत चेंज करते थे. So one advice you would say is not change your teachers and stick to the main source only. शशांक, आपकी एडवाइस कोई भी, like what did you observe बच्चों में? मुझे सर एक तो मैंने सर ये चीज देखी है राइज में, जैसे बच्चे क्लास खत्म होने के बाद सर ग्रुप बना लेते हैं 10-15 बच्चों का, और सर वो एक बंदा बोलता रहता है, सब सुनते रहते हैं, तो एट द एंड सबको लगता है कि हमें याद हो गया है. पर सर मेरे हिसाब से एक रीडिंग खुद को देनी चाहिए. उसके बाद छोटा से छोटा ग्रुप हो उतना अच्छा है, 2-3-4 बच्चों का बस मैक्स टू मैक्स. तो सर वो एक उनका फॉल्स बिलीव रहता है कि हमें चीजें आ गई हैं, बट सर वैसा होता नहीं है. क्योंकि जैसे हमने भी हंसी मजाक में सर ऐसे लास्ट 5th ईयर में सर जैसे कृष्णा हमें बायो कैम पढ़ा देता था कभी कुछ ऐसे ही, तो हमें लगता था कि हमारी हो गई है, बट सर अगले दिन पूरी साफ होती थी, वो कुछ नहीं आता था. तो सर वो मैंने काफी देखा है बच्चों के अंदर. And Dr. Krishna, आपके any suggestions or any advices that you would say? सर मतलब ये चीज मैंने नोट, सर मैं क्वेश्चंस बहुत कम प्रैक्टिस कर पाता था, क्योंकि बस पता नहीं क्यों मुझसे हो नहीं पाते थे. मैं करता था प्लान कि इतने लगाऊंगा इतने करूंगा, बट हो नहीं पाते थे सर मुझसे क्वेश्चन. तो लास्ट तक सर मेरे पीवाईक्यूज भी एफएमजी के नहीं हो पाए थे. तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था सर एग्जाम के लिए, तब मैं ट्रेन में अपने ऑब्स गायनी के पीवाईक्यूज कर रहा था उस दिन. कुछ तो कर लेता हूँ जितने कर पाता हूँ, बट सर ये चीज है कि आपने पढ़ा है सर, नोट्स जो भी आपने पढ़ा है वो इनफ है सर. उतना भी अगर आप ट्रस्ट करेंगे कि हाँ मुझे आता है मैं कर लूंगा, तो सर ये नहीं है कि कुछ तो छूटेगा ही, तो आप उसकी केयर मत करिए, जो पढ़ा है वो सोल्यूशन है सर. Being confident and जितना आप कर सकते हैं सिंसियरली करिए. Don't try to run behind everything. ये सब कुछ कंप्लीट करने के उसमें होना चाहिए. Nice. And Jyoti, anything from your side? You must have observed a lot of students. सर द सेम थिंग. मुझे मतलब हमेशा से यही चीज लगी कि
एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए लोग बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, फिर कुछ सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं कि जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, उनके सिर्फ पीवाईक्यू कर लेंगे, एनाटॉमी के सिर्फ पीवाईक्यू कर लेंगे, उसी से कोई पेपर आता है, या फिर हम किसी सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन देख लेंगे। उस वो बहुत ज्यादा बच्चों में है कि हम मेडिसिन से तो सारे क्वेश्चन बना लेंगे, एनेस्थीसिया हम पढ़ के ही नहीं जाएंगे। तो वो चीज मेरे को समझी नहीं। और दूसरा कि सेम सब्जेक्ट जो है, सेम सोर्स है, कोई भी टीचर हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो वो उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक बार से नहीं याद होता है। तो ये चीज मैं भी देखा है कि भाई कई सारे बार इट्स अ पेनफुल प्रोसेस टू सिट थ्रू द होल क्लास, पूरे 6 6 घंटे तक 6 6 सब दिन चल रहा है सब्जेक्ट, और पैथो अगर देवेश सर पढ़ा रहे, तो वो इट लुक्स लाइक अ पेनफुल प्रोसेस। यू लाइक टू गो टू अ वेरी क्रिस्प 3 घंटे का 4 घंटे का भी पैथो हो रहा है, राइट? तो यू हैव दैट टेम्पटेशन, बट वंस यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू गेट, द काइंड ऑफ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू गेट, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर एडवाइस दैट गो, जितना डिटेल में होगा करिए आप, stick to the resources that you are going with and avoid a shortcut. Any specific mentions, Jyoti? Some specific teachers that you would like to mention during this journey of yours? सर, द स्पेशली यू, क्योंकि हमारी बहुत बात हुई है, मतलब मैं हमेशा एडवाइस के लिए प्रायोरिटी देती हूँ। तो आप और प्रियांश सर, नो डाउट, प्रीतेश सर, मतलब उन्होंने तो परसेप्शन ही चेंज कर दिया सर्जरी को लेके हमारा सबका। एंड विद सर, उनका जो पैशन है टुवर्ड्स टीचिंग, वो कमेंडेबल है सर। वो सुबह आते थे अपना काम करके और पूरी एनर्जी से, हमसे ज्यादा एंथुसियास्टिक थे सर। And he's a very senior faculty also, and the kind of energy that he maintains to the end, सारे बच्चों को लेके चलते हैं, really amazing. अमित, आपके कोई favorite teachers during this journey you'll remember? सर मेनली फेवरेट टीचर तो सर प्रियांश सर ही हैं, क्योंकि जैसे 5th ईयर हमारा कंप्लीट हुआ था तो हमने प्रेप मैरो से पढ़ा था, लेकिन कुछ याद था नहीं। फिर प्रियांश सर सबसे पहले बायोकेम पढ़ाने आए थे हमें, तो सर से बात की थी, सर ने बताया ऐसे ऐसे पढ़ो। तो उस तरीके मेनली तो सर उन्हीं के तरीके से पढ़ा है मैंने, तो कि फ्लिप द पेजेस, बस पेज पढ़ते रहो। A lot of students actually find Priyansh sir's advices very practical and very useful for their preparation also. और सलमान सर की सर मेनली सर उन्होंने कहा था कि हर सब्जेक्ट के पीवाईटी मार्क करो जरूर, मेनली सर आखिरी में वही फोकस किए हैं। तो वो सर 2 बार रिवीजन हो जाता था, एक बार पीवाईटी मार्क करते टाइम और एक बार खुद से पढ़ते टाइम सर। Shana sir, some special mentions from you. फर्स्ट ऑफ ऑल देवेश मिश्रा सर, तो उनकी वजह से पैथो बहुत इजी हो गई सर। The core subject actually इस also. सर भी हैं, संदीप शर्मा सर, तो पूरी राइज फैकल्टी में तो पास हुआ जो राइज की वजह से हुआ सर। Nice, nice. I think Shana sir was one of our most trusting student. पूरा जो बोले कि नोट्स पूरे कुछ नहीं, बस राइज में जो पढ़ाया गया। सर ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो इसको। कि हम लोग क्या नाम है, हम सिर्फ राइस को ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको ब्लेम करेंगे आके, वो मैंने 5 की तरफ से बोला था कलेक्टिव। ज्योति तो डरा दिया। मैं फर्स्ट रिजल्ट आने के बाद आई थिंक जो मैसेजेस कर रहे थे, मेरे को फर्स्ट चीज मैं वेट कर रहा था कि ज्योति का क्या हुआ। आई वाज नॉट कंफर्टेबल टू आस्क कर, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या बोले। क्योंकि सर हमने सिर्फ राइज के नोट्स पढ़े हैं, आखिरी पॉइंट तक हमने सिर्फ राइज के पढ़े, यूट्यूब तक वीडियो भी नहीं देखी हुई। Good. And Shashank, some good mentions from your sides. Any teachers that you really want to mention today? सर जैसा कि सबने कहा है, सारी फैकल्टी अच्छी लगी मुझे, बट सर सलमान सर हो गए, प्रियांश सर हो गए, विद सर हो गए, एंड सर यू ऑल्सो सर, काफी हेल्प मिली है उनके नोट्स से भी सर, उनके टीचिंग स्टाइल से भी। Nice. Yeah, and getting 200 plus in the exams, I think a lot of attitude भी है और lot of sarcasm भी है ये लोग में। Really nice, really सर वो nice. तो शशांक का 10 मिनट कंप्यूटर बंद हो गया था, नहीं सर, 250 प्लस थे सर इसके तो। अरे really nice. And Dr. Krishna, any special classes that you remember journey में? सर स्पेशली पैथो एंड सर्जरी सर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस सर पैथोलॉजी की और सर्जरी की सर बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब प्रीतेश सर ने तो सर बहुत अच्छा पढ़ाया लिटरली सर। माहौल भी अलग था इस बार सर्जरी क्लास में। बहुत सर, हम लोग सर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने सर वहां भी पढ़ा था सर से, एक बार सर आए थे, बट सर यहाँ पर सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, एक्सेप्शनल पढ़ाया सर ने। Awesome. जी सर, और बाकी सर सारी फैकल्टीज ही बहुत अच्छी राइज की हैं।
क्योंकि हमारा सर हमने पूरे ही सर राइस से ही पढ़ा है, जो भी पढ़ा है लास्ट में, तो सर सारा क्रेडिट पूरी टीम को ही है राइस की सर। नाइस। एंड डॉक्टर ज्योति, डज इट रियली फील टायरिंग? इतने रेगुलर क्लासेस होते हैं, इतना लॉन्ग सेशंस होते हैं, हाउ हाउ डू स्टूडेंट्स एक्चुअली मैनेज? ये ऑफलाइन क्लासेस करना तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल वो हो जाता है ना कि भाई इतना जाएंगे, इतना लंबा करेंगे, कैसा करेंगे, राइट? तब वो कभी लगा ही नहीं, मतलब बहुत लास्ट में एक दो बार मैं स्पेशली, बाकी तो लोग नहीं करते, मैं स्पेशली पैनिक भी करती थी, थोड़ा सा मैं परेशान हो जाती थी। फिर मुझे बोलते थे कि इतना तो हो रहा है, क्या हो गया, पढ़ लेंगे। मतलब कभी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही लिया, कभी ऐसे नहीं लिया कि। और मेरी यू फैमिली से भी सर कभी ऐसा था नहीं प्रेशर, मेरे भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तू कर तो रही है, एटलीस्ट यू आर डूइंग, तो जो भी होगा हम लोग देखेंगे ना रिजल्ट साथ में। तो वो एक, कभी पीछे से भी मुझे प्रेशर नहीं आया। और बाकी दोस्त तो सर मेरे कभी प्रेशर लेते भी नहीं थे और देते भी नहीं थे। जैसे ये अमित खाली सबसे विदाउट ही टोकता क्लास था। में विदाउट बुक्स लेके बैठने वाले बच्चे हैं, क्या प्रेशर रहेगा इनको? हाँ, सर कोई प्रेशर ही नहीं था, हम लोगों ने मतलब सोचा था कि क्लास में सर ऐसे इंटेंशन से बैठते थे एमसीए क्लास में कि जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, बस लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं पता नहीं। एक इंसान कोई नोट्स लिखता था, जैसे कृष्णा लिखता था, उसकी फोटोकॉपी सब करा लेते थे। Nice, nice. Hmm. And Amit, any special mentions of your university friends or university, teachers, or any special mentions from your family? ये सर फ्रेंड तो सर से मेरे सगे चाचा का लड़का सर राइस जयपुर में था सर, उसने भी क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। Nice. जो हमारा जलालाबाद का ग्रुप था उसमें हम 5 बंदे थे सर, सबने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया सर। Nice. और सर फैमिली का तो सर सपोर्ट स्टार्टिंग से ही था कि पापा हमेशा कॉल कर, आखिरी में कॉल करके कहते थे कुछ नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल ही होगा, देख लेंगे। वही वही बहुत बड़ी बातें हो जाती है सर। तो लेकिन सर लगता नहीं था, मेनली मैं जो थी लाइब्रेरी में रहते थे, तो यही था कि हाँ भाई चलो आज पन्ने पलटने आ जाओ। Really, और सर really एक happy. स्पेशल मेंशन रह गया, हम सबके एक फेवरेट टीचर है नदीम सर। नदीम सर की सबने क्लासेस बहुत एंजॉय की। उन्हें तो सर भूल ही नहीं सकते हम, ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट है जो नदीम सर नहीं पढ़ाते। वो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं हम सबको। वो जो साइकेट्री में बोलते हैं ना, प्रियंस सर आके मजाक हाँ उड़ाते हैं, ये तो साइकेट्री पे पढ़ लिया होगा, ओके, सर ईसीजी भी साइकेट्री पे पढ़ लिया होगा। मेडिसिन पढ़ते हैं हम लोग, साइकेट्री मेडिसिन भी पढ़ते हैं, सर्जरी भी पढ़ते हैं, कभी कभी पैथो भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी सर थोड़ा थोड़ा माइक्रो का भी बता देते हैं। तो सर एकदम डाइवर्स विजन रखते हैं। लेकिन आई थिंक नदीम सर के अंदर आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ करंट इन हिज बॉडी, ओके, वो पॉजिटिविटी रेडिएट होती है उनसे, एंड ये देन सर goes जब into the जलालाबाद whole में आए थे class, सर whole मैं, atmosphere. Nice, nice. And Shahnazer, how was this journey like for you and your family and all? Was it कैसा आप लोग focus थे कि हो जाएगा, और how did this journey start for you? Like abroad जाना, class करना, was it a easy decision or tough one? सर अब तो लगता है इजी है, पहले तो टफ लग रहा था सर एग्जाम से पहले। लेकिन दोस्त अच्छे मिल गए सर, तो उन्होंने पढ़ाया खुद से, तो मैं बहुत ही कम पढ़ा, वे अपने बीच बिठा लेते थे, तो बहुत इजी लगी सर जर्नी तो। इजीली पास आउट हो गए। एक हरीश था सर राय जयपुर में, उसकी भी Hmm, सर 199 है। nice. हमेशा गाली दे करके पढ़ाता था सर वो, अगर डांटता भी था, अगर मैं नहीं कुछ बोल पाता था तो बहुत डांटता था सर। Nice, nice. And Shashank, any special mentions from friends, family, and in your university days? सर फैमिली का तो सर सपोर्ट रहा ही है शुरू से। बट सर जैसे मेरे दोस्त हैं सारे यही थे सर। अमित को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और बाकी सर ये Mhm. सारे यूनिवर्सिटी से थे। और भी फ्रेंड्स थे सर, जैसे बाकी जैसे जिसने बताया हरीश हो गया, राहुल हो गया, सर युवराज, ये सारे दोस्त थे हम। तो सर इन इन सबसे सर बहुत मोटिवेशन मिला है, बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं सर। क्योंकि एक टाइम पे तो मेरे को लगता था कि सब क्या बातें कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन करते थे सब, इतना पढ़ता नहीं था उस टाइम पर मैं। तो लगता था कि पता नहीं क्या ही कौन सी बटरफ्लाइज बातें चल रही हैं ये। पर सर धीरे धीरे इनको देख के लगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। तो सर धीरे धीरे शुरू किया मैंने भी। Nice. तो सर फिर वही हंसी मजाक में बस प्रिपरेशन हो गई हम सबकी, और फिर एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है। And was it a difficult decision, शशांक, जब आप लोग जा रहे थे, आपका आपका जो एमबीबीएस का जर्नी था, was it a support? I mean, आप लोग के फैमिली में कोई डॉक्टर्स थे पहले, और who has done एमबीबीएस abroad or something? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। पहली फैमिली में सर पहले ही एमबीबीएस डॉक्टर हैं सर, लगभग हम सारे ही। और Nice. सर शुरू में तो सर लगता है जैसे कोई भी नहीं होता वहां पर, सब कुछ नया नया, नो फ्रेंड्स। बट Hmm. सर धीरे धीरे जैसे सबका वाइब मैच होता रहता है, ओरा मैच होता है, तो वो सर फ्रेंड्स बन जाते हैं धीरे धीरे। तो सर Hmm. ऐसे हंसी मजाक करते पता ही नहीं चला हमें कि हम घर से दूर आए हुए हैं।
सर लड़के तो सर खासकर वैसे भी पता लगने नहीं देते हैं, रो भी तो नहीं सकते सर उनके आगे, नहीं तो फिर मजाक उड़ाएंगे। ये तो सर जीटी पे मार्क्स कमाने पे मजाक उड़ाते हैं ये लोग, तो अभी अभी रोएंगे तो क्या करेंगे ये हाल। कोई स्कोप नहीं है सर निराश होने का और दुखी होने का इनके सामने, सर फिर उसका भी मजाक उड़ाएंगे, बात ये है। नाइस नाइस। एंड डॉक्टर कृष्णा, योर मेंशंस। सर सर कोचिंग में तो सर फैमिली से बहुत दूर थे, इतना तो बात हो जाती थी कभी कभी सर वीकेंड्स पे। तो सर यही, जितने हम फ्लैटमेट्स थे और सारे फ्रेंड थे सर, यही फैमिली, सुबह से शाम इनके साथ ही रहना है। नाश्ता भी साथ कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट साथ कर रहे हैं, फिर क्लासेस में भी साथ है, लाइब्रेरी में भी साथ है सर, तो पूरा दिन इनके साथ ही रहते थे हम लोग। जो भी कर रहे हैं साथ में ही है सब कुछ सर। I think you all will be missing the whole premises and whole journey at Arise, right? तो याद आता होगा अभी तो इतना सारा, बहुत सर। fun you had all after GTs and after things. You must have enjoyed that whole process. Jyoti, you're missing the whole vibes at Arise? सर अभी मैं ऐसे तो नहीं बोलना चाहूंगी कि मुझे दोबारा वो वाइब चाहिए, बट हाँ वो वाइब्स ऐसा था कि हमें सुबह से शाम नहीं पता चलती थी। हम लोग के पास एक टारगेट होता था कि अभी हम, जैसे अब स्केड्यूल आ गया, हम अगले महीने के स्केड्यूल के लिए भी, जैसे कृष्णा हमेशा ऐसे बोलता रहेगा स्केड्यूल कब आएगा, स्केड्यूल कब आएगा, मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, जो वो कभी नहीं फॉलो करता। तो हम लोग स्केड्यूल के हिसाब से ही चलते थे कि आज टेस्ट दे दिया मतलब छुट्टी, कुछ नहीं करेंगे अब। फिर वो टेस्ट का वेट करते थे, कभी तो आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता था, कभी 9 बजे तक उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो वो वाइब अच्छी थी वहां पे, मतलब इंगेज थे हम चीजों में। तो कभी स्ट्रेस नहीं आया, कभी डिप्रेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं था। इनफैक्ट जब आखिरी दिन था ना एग्जाम का, ये लोग का सेंटर कानपुर था, मेरा अकेले का था गाजियाबाद, तो अमित का दिल्ली में था। तो हम लोगों ने सबने, ऐसा था कि लो फील हो रहा था, फिर ऐसा लगा कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते थे, कि अगर ऐसा हो कि 10 दिन और मिल जाएंगे तो कुछ नया पढ़ देंगे। तो वो भी नई फीलिंग आ रही थी कि जितना पढ़ दिया उतना ही पढ़ सकते थे, और इतने से ही पेपर दे के आएंगे। Nice. And Amit, TFDs and all of these sessions के बाद जो pressure handle करने का जो you get each test done, you already score well, तो already एक confidence build होता है going into the classes, right? तो how was that journey for you, TNDs and GTs का? सर मेनली ये था कि जैसे टीएनडी होते थे, मैंने सारे सब्जेक्ट के टीएनडी तो नहीं देखे, जो ये था कि जो थोड़े वीक सब्जेक्ट हैं और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट उन सब सारे सब्जेक्ट के मैंने टीएनडी देखे थे सर। जीटी वगैरह देता उसको भी, उसने भी सर मेरा बहुत हेल्प किया आखिरी में जाके। कितने जीटीज दिए अमिताभ, कितने जीटीज? सर मैंने मेनली सर मैंने 5 जीटी दिए थे। लाइक सर फर्स्ट वन तो 143, देन 185, 197, 214 एंड 209 सर। मेनली सर एक जीटी था जिसमें सब हम डिप्रेशन में गए थे सर, वो सर अदीम सर ने बनाया था वो जीटी सर। अच्छा, आई थिंक वो क्रिटिकल क्वेश्चंस का थोड़ा सा ना, वो एक जीटी से क्या होता है, आपको एग्जाम में भी थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो ट्रेनिंग हो जाती है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको सारा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा फील हो कि एंड स्टिल बी एबल टू हैंडल। मैंने सर उसमें सबको ये लगा भाई इसमें तो 150 आ जाए बहुत है, लेकिन जैसे रिजल्ट आया देखें उसमें 209 थे, तो ये लगा था कि भाई इसमें पास हो सकते, वहां भी पास हो ही जाएंगे अब तो। नाइस नाइस। एंड शहनाज सर, फ्यू वर्ड्स अबाउट योर रिवीजन सेशंस। आप क्लासेस तो अटेंड करें, रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए? सर रिवीजन के लिए जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है शाम के टाइम, वो डेली अपना रिवाइज करिए, बहुत आसान हो जाएगा सर, बच्चों के लिए भी है। सर मेरे तो जो जूनियर है उत्तम और शिवराम, ये मुझसे भी ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि भैया रिवाइज कैसे करें, मैं तो उन्हें भी ये बोलता हूँ जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही पढ़िए, Nice, nice. तो इससे sticking ज्यादा to the कुछ मत schedule, करो। sticking to the schedule, sticking to the process work for you. And Shashank, आपके कोई advices after 19 subjects students have done? There is a lot of free time also, self time of preparation. आपको आपका रिवीजन आपने कैसा प्लान किया? सर जैसे अराइज के जो शेड्यूल आए थे टीएनडी का सर, उसके हिसाब से सर मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। जैसे प्रियांश सर ने कहा था कि अपना खुद का शेड्यूल बनाओ तुम, वरना फिर एक सब्जेक्ट के लूप में फंस के रह जाओगे, वही सूडो मार्क्स आएंगे तुम्हारे, एक सब्जेक्ट पढ़ के तुम टेस्ट दे दोगे। तो सर मैंने मेरा खुद का शेड्यूल बनाया था, जो भी जैसा भी था। पर सर टेस्ट में रेगुलर देता था, जो भी टीएनडी का टेस्ट हुआ वो अटेम्प्ट करता था सर। You followed your schedule but tried to attempt all the tests. बस यस basically सर, बोल रहे हो। उसमें सर Nice. कैसे भी नंबर आए, उसमें भी सर ठीक नंबर आ जाते थे भगवान की दया से। बट सर अपना खुद का शेड्यूल ही फॉलो किया था मैंने, कि जैसा चल रहा है मैं टेस्ट दे दूंगा, बट पढ़ूंगा अपने हिसाब से। Nice, nice. एंड कृष्णा, आपका आपका जो रिवीजन प्लान कैसा था? सर सर स्टार्टिंग से यही था कि सर टेस्ट के पहले एक बार नोट्स फिलअप करने हैं पूरे, चाहे जैसे भी करें। अगर क्लास के साथ हुआ, अगर कभी क्लास लेट छूटी, नहीं टाइम मिला आपको, तो सर टेस्ट के पहले एटलीस्ट कर लेना एक बार है, क्योंकि सर स्टार्टिंग क्लासेस में एक दिन गैप मिलता था सर हर टेस्ट के पहले हम लोगों को। तो एक दिन में सर एक बार फ्लिप हो जाते हैं नोट्स।
तो सर टेस्ट सर क्लासेस के साथ सारे टेस्ट दिए हम लोगों ने, वही रिवाइज किया। फिर सर लास्ट में बहुत टाइम मिलता है, अराउंड 100 days वी हैड सर एग्जाम के पहले। तो सर उस समय ये आपको खुद को डायरेक्ट करना होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे अपना स्ट्रेटजाइज करने की चीजों को है। तो सर वो जैसा शेड्यूल आया था सर टीएनडीज का, मैंने स्टार्टिंग में तो कुछ टीएनडीज का फॉलो किया सर, बट फिर लास्ट में लगा कि सर जो चीजें पढ़ रहे हैं वो फिर से भूल जा रही हैं। फिर सर मैंने खुद से अपनी चीजें फिगर आउट करी कि कैसे क्या पढ़ना है, शेड्यूल बनाया सर। और सर जीटी मेरी हॉबी थी सर, मुझे जीटी जहां मिलता था मुझे लगता था कि मैं दे देता हूँ, कि वो एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती कितने मार्क्स आएंगे, मैं फेल तो नहीं करूंगा। तो सर मुझे मजा आता था जीटी देने में। एंड तो सर मैंने कितने दिए आप प्रिपरेशन सर में? मैंने 7-8 जीटी सर आई गेव। Nice, nice. And really happy for each one of you for the kind of results that you have all brought in. This FMG exam is a huge hurdle for the juniors, right? आपके as a people have gone through this whole process and come out on the successful side in the first attempt. आप लोग इमेजिन कीजिए कि जो जूनियर बच्चे सुन रहे हैं, मे बी इन द फाइनल ईयर के बच्चे भी रहेंगे जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और इवन जूनियर्स हैं जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के यूनिवर्सिटी डेज में हैं। आप लोग की तरफ से आई वुड वांट सम लाइंस ऑफ एडवाइस दैट स्टूडेंट्स वुड एक्चुअली अब्सॉर्ब इट एंड हेल्प देम टू क्लियर दिस एग्जाम। सर मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि भरोसा करना पड़ेगा। जहां भी आप जा रहे हो, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, उसको एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यही पास कराएगा, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप खुद से भी देखते हो, प्लेटफॉर्म पे भी देखते हो, तो एक सोर्स डिसाइड कर लो, जो भी कंफर्टेबल लगे उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो टिल द डे जब आप एग्जाम दे के वापस आ जाते हो। Nice. Trust the process until the 300th question. Nice. And Amit, आपके तरफ से some advices to the juniors. सर मेनली वही है कि जो वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं वो जरूर करें, और क्लास वहाँ करने के बाद एमसीक्यू लगाएं। और इंडिया के मेनली यही है कि कोचिंग ज्वाइन कर लें, ताकि थोड़ा वो रहेगा, मोमेंटम बना रहेगा। क्यों, एक तो सेम टीचर होंगे, रिवाइज नोट्स ज्यादा बार होंगे, तो उसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी सर आखिरी में जाके। And Shanazar. तो मैं ये बोलना चाहूंगा, बच्चे वहां पे ये सोचते हैं कि दिल्ली आकर के कर लेंगे, फिर दिल्ली आकर फंस जाते हैं बच्चे। और तो एक दफे वहां पे अच्छे से हो पाए तो कर लो, नहीं तो दिल्ली तो फिर एट द एंड करना ही है तुम्हें। And Shashank from your side. सर मैं तो सर जैसे क्लास होती सर, क्लास अटेंड करें अपने यूनिवर्सिटी के दिनों के हिसाब से। और सर जो सबसे सीधा रास्ता है सर, सबसे आसान वही है। मैंने सर ऐसा कुछ खास एक्सपेरिमेंट किया नहीं, और ना ही मेरे दोस्तों ने ऐसा कुछ किया। ना हम सर ऐसा कि जो था सीधा था सर, आए रिवाइज किया, अपने क्वेश्चन लगा लिए जितने हो सके, और अपने चलते गए इसी हिसाब से सर। और सर बस ये है कि यही सब करना और अपने दोस्त बढ़िया बनाना 2-3, बाकी सब हो जाएगा। So I think this is a great example. Good friends and good results. So that is what this whole example is. And Dr. Krishna from your side. तो सेम चीज है सर, थोड़े सर कॉन्सेप्ट होने चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि आप जब आपका मोमेंटम बन जाए सर कोचिंग में जब आप ज्वाइन करते हो। क्योंकि स्टार्टिंग सर एकदम स्टार्ट करना वो बहुत टफ हो जाता है उस टाइम पे। तो सर अगर आपको थोड़ा पढ़ा रहता है आपने स्टार्टिंग में चीजें, तो आपको बहुत इजी लगता है कि हाँ सब्जेक्ट ज्यादा टफ नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स अनटच रहते हैं कोई बात नहीं सर, पर मेन सब्जेक्ट जैसे पैथोलॉजी है, मेडिसिन, सर्जरी है, आपने एक बार देखा हो एटलीस्ट वहां पर, भले ही कुछ चैप्टर्स देखे हो, बट आपने एक बार कम से कम देखा हो, तो सर वो फिर इतना टफ नहीं लगता वहां पर आकर के चीजें हैं। तो बस सर यही चीज है, अगर आपने थोड़ा बहुत किया है स्टार्टिंग में तो सर यू विल फाइंड इट वेरी इजी सर लास्ट में। तो Really nice. And thank you so much to everybody for joining us tonight. And थैंक यू सो you मच all टू सर mean स्पेशली। आप लोग having trusted the system, trusted the process, and coming down and passing out with such flying colors, and that too in the first attempt such good scores. We wish you all a prosperous future and a bright future ahead. Wishing you all of you are promising doctors for the country, and you'll all do well, right? Continue the same momentum, continue the same journey. These are the kind of doctors that we would want to have in our country, dedicated, disciplined, and promising for the country. Okay, all the best. Thank you so much, everybody. थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर।